There is so much information also available on social media. People know that you have retired. People know that you would be having money. Anybody can be caught. You have to be very careful. Or they are professionals, yeah. We are talking about our senior citizens who are becoming soft targets for hard-hearted fraudsters. And when anybody starts talking to you in your own name, talking about familiar things, then they have already established trust. And this is the route to your money. I'll tell this to senior citizens. आपके साथ अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आप बताइए. अंग्रेजी में कहावत है that if you think it's too good to be true, it probably is. अगर आपको लगता है अरे यार इसमें इतना मुनाफा होने वाला है, I'm going to make a big profit, 99% it is a fraud. और आप पैसे नहीं कमाने वाले. कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, लेकिन फ्रॉड करके जीतने वाले उन्हें हम बाजीगर नहीं फ्रॉडस्टर्स कहते हैं. Yes, fraudsters, अब तुम्हारी बात नहीं बनेगी क्योंकि Vigilante is back with a brand new episode of Conversation with Vigilante. Today's episode is very close to my heart. It's about those who protected us all our lives, but now need our protection. Yes, doston, we are talking about our senior citizens who are becoming soft targets for hard-hearted fraudsters. According to the Indian Cybercrime Coordination Center, frauds targeting senior citizens are rising sharply, from fake Char Dham packages to health insurance frauds and the most prevalent of them all, digital arrests. वाह! और इसी जनरेशन की आवाज बनकर आज हमारे साथ हैं the iconic actor Mr. Dalip Tahil. Mr. Dalip, welcome to the Vigil Army. This is for you. Thank you very much for this. Our second guest is a gentleman who has cracked some of India's biggest cybercrime cases. An author, an investigator, a digital warrior, additional DGP of Maharashtra Police, Mr. Brijesh Singh. Mr. Brijesh, welcome to our Vigil Army. This is for you. Thank you so much. Suiting you already, Mr. Brijesh, I can tell. I'm already feeling like a senior citizen. Join the club. Yeah. But before we dive into today's sophisticated frauds, let's rewind a little bit. You see, frauds did not start with smartphones and WhatsApp. Back in the day, conmen would show up at your doorstep posing as salespeople, donation agents and brokers. Mr. Dalip, I don't mean to age you, लेकिन आपने वो जमाना भी देखा है जहां fraudsters would come to your doorstep. Do you recall any such incidents from that time? Well, thank you, Vigilante, for telling me that I'm not a senior citizen and you don't want to age me. But the truth of the matter is that, yes, I do remember, not personally in terms of जैसे आपने कहा कोई दरवाजे पे सूट पहन के आए हैं, लेकिन जब से क्राइम रहा है, मतलब from time immemorial, fraudsters जो हैं, उन्होंने अभी तो डिजिटल एज आ गया, लेकिन उसके पहले जब बैंक्स होते थे या सेफ होते थे लोगों के पास, फ्रॉडस्टर्स ऐसे होते थे ऑलवेज वन स्टेप अहेड ऑफ द vigilantes and the people who keep vigil. Mr. Brijesh, now you have been in this field for a very long time, long enough to see how these techniques have evolved. So what were some of the fraud trends before the digital era? You know, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पहले होता था कि लोग फेक पुलिस वाले बन के खड़े हो जाते थे. हाँ. अब तो मोबाइल में से निकल रहे हैं. Correct. But पहले you would have that at a distance from police station, people would dress like policemen या सिर्फ बेल्ट पहन लेते थे, खड़े हो जाते थे, and then they would, start searching people. And they would take away ornaments and rings and everything. Now, बहुत अलग अलग तरह के फ्रॉड्स होते थे. पहले मेल टू ऑर्डर कोई चीज आप करते थे और अंदर से ब्रिक्स निकलते थे. फिर इस तरह की बेसिक थिंग वाज बेसिकली हैकिंग योर माइंड इन द सेंस यूजिंग योर ट्रस्ट एंड आस्किंग यू टू पे फॉर समथिंग. प्रोसेसिंग फी हो, कोई चीज हो, चेक्स कैश कर लिए जाते थे. कोई लोग आते थे अबाउट योर रिटायरमेंट फंड, गवर्नमेंट अथॉरिटी बन के आते थे. तो ये बहुत दिन से चलता रहा है. सेम ट्रेंड्स अब कंटिन्यू हो रहे हैं, बट दे हैव टेकन अ मोबाइल फॉर्म. एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी हैज मेड इट सो इजी फॉर एवरीबडी टू कम इनसाइड योर होम. पहले तो एटलीस्ट जो था वो दूर खड़ा रहता था, ही ट्राइड टू ड्रेस अप लाइक अ पुलिसमैन. आज तो दे कैन ड्रेस अप समवेयर, दे कैन बी समवेयर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एंड दे कैन बी ऑनलाइन ऑन कॉल विथ यू प्रिटेंडिंग टू बी अथॉरिटीज. सो इवोल्यूशन हुआ है ट्रेंड्स में. पहले फिजिकल था, अब तो उसको फिजिकल रहने की जरूरत नहीं है, ये ऑनलाइन हो जाता है. Mr. Brijesh, what makes senior citizens more vulnerable to these cyber frauds? Is it lack of digital awareness, emotional reasons, a combination of the two, something else entirely? See, I'll tell you, the newer generations are digital natives, but for most of the senior citizens, they saw technology growing with them. So they are not as natively used to technology as young children are. There was one small video earlier of a small girl
जो फिजिकल फोटो को शी इज ट्राइंग टू एक्सपैंड. So their minds are attuned to technology. Similarly, when you come to senior citizens, their minds are not attuned to technology. Also, with age, there is cognitive decline. You know, neuromuscular आपका reaction time change हो जाता है. इसको लेके कई बार there are assistive features, like देखने की शक्ति कम होती है. So there are assistive features कि sometimes, you know, it makes it easier to click on an app or on a desktop. These features are exploited by fraudsters because they know that here is somebody, and Indian generally senior citizens, they have money. I mean, compare all across the world, there are Indian people who have been saving money all their lives for their retirements. So Indian senior citizen खासकर जो होता है उसके पास पैसा होता है. There is so much information also available about us on social media that हम लोग हर चीज अपना बिल्ली से लेके अपना खाने का सैंडविच का फोटो सब जगह डाल रहे हैं, लोकेशन डाल रहे हैं. Now people know when you are retiring. People know that you have retired. People know that you would be having money. People know whether you are single or not. So आपकी vulnerability पूरी तरह already सोशल मीडिया पे अवेलेबल है. फ्रॉडस्टर को मौका मिलता है कि किस प्रकार से आपके लिए प्रोफाइल करके क्वेश्चन बनाया जाए. एंड व्हेन एनीबडी स्टार्ट्स टॉकिंग टू यू इन योर ओन नेम, टॉकिंग अबाउट फेमिलियर थिंग्स, देन दे हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ट्रस्ट, एंड दिस इज द रूट टू योर मनी. सो द ट्रस्ट is the route to your money, and that is what makes them especially vulnerable. So they have been in an active life, and now suddenly there's a vacuum. So they also want to talk to somebody, they want to relate, and all these factors leave them in a space where they become more vulnerable than other people. Also, their awareness of frauds and their general consumption of media makes them a specific victim. और ऊपर से इतना ओवर कम्युनिकेशन हो गया है, देयर इज इन्फॉर्मेशन एवरीवेयर, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पेजेस, रीयूनियन ग्रुप्स, सारी चीज़ें, बट इसमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डूब जाती है. सो दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वेयर टू लुक फॉर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल. Correct. Mr. Dalip, would you have something to add to that? Would you agree with everything Mr. Brijesh said? I do. In fact, he's covered very eloquently most of the points. बिल्कुल सही कहा है ब्रिजेश जी ने. I just want to add another psychological or a situation जो सीनियर सिटीजन्स के पास जब उनकी वो समय जब सीनियर सिटीजन्स बन जाते हैं तो देयर इज एन एरिया ऑफ वनरेबिलिटी व्हिच मींस कि दे आर टारगेट्स, द इजी टारगेट्स, एंड ही मेंशन मोस्ट. बट वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि अगर आप किसी भी इंसान का जो काम कर रहा है उनका ग्राफ देखिए तो लेट्स अस्यूम कि 25 साल की उम्र में वो काम शुरू करते हैं, फिर उनकी फैमिली हो जाती है, एंड दे सेंटर स्टेज इन देयर लाइव्स. अगर आप काम करते हो आदमी हो, योर सेंटर स्टेज, फिर आपकी शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, और फिर आप 65 साल के हो जाते हो और आपको रिटायर करना पड़ता है, तो आपका पेंशन होता है, सब कुछ ठीक है. लेकिन आपकी जिंदगी में आप थोड़ा सा ऑफ सेंटर हो गए. अब आपके बच्चे भी हैं, पोते और ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, तो देयर बिकम्स अ लिटिल सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस एंड सेल्फ sort of not as important and not centered as you were. I'm looking for the word, I'm not finding it. They are not the protagonist of their own life now, they feel. Yeah, they're not the protagonist, and their self-belief also begins to take Self-confidence also self-confidence takes a bit of things, and उनको लगता है कि हमें किसी भी तरह contribute करना चाहिए. अभी ये गलत फहमी हो गई है कि the only way senior citizens can perhaps contribute is कि हम बहुत सारे पैसे कमा लें ताकि हमें ऐसा हो कि हम कुछ छोड़ के जाएं. ये अच्छी बात है सोचना कि हम कुछ छोड़ के जाएं, लेकिन इन प्लेटफॉर्म से इस तरीके से कमाना बिल्कुल जायज नहीं है. क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है that if you think it's too good to be true, it probably is. अगर आपको लगता है अरे यार इसमें इतना मुनाफा होने वाला है, I'm going to make a big profit, 99% it is a fraud और आप पैसे नहीं कमाने वाले. आजकल फ्रॉडस्टर्स तो और भी बोल्ड हो गए. हरियाणा में सीनियर्स से 1.5 करोड़ का डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड हुआ, एंड रिसेंटली इन महाराष्ट्र द बिगेस्ट डिजिटल अरेस्ट केस अकर्ड वेयर अ 72-year-old मैन लॉस्ट 58 crores टू अ डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड. मिस्टर ब्रिजेश, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं सिंपल शब्दों में कि ये डिजिटल अरेस्ट एग्जैक्टली है क्या और इससे हम सावधान कैसे रह सकते हैं? सबसे पहली बात, देयर इज नथिंग कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट. आई रिपीट, देयर इज नथिंग कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट. आपको स्क्रीन पे कोई अरेस्ट नहीं कर सकता. एंड एज सून एज समबडी स्टार्ट्स डूइंग दैट, एज सून एज समबडी स्टार्ट्स मेंशनिंग द वर्ड, 3 चीजें की है: स्टॉप, स्क्रीनशॉट, शेयर एंड रिपोर्ट. देखिए, आई विल टेल दिस टू सीनियर सिटीजंस लाइक
कि आप लोग ज्ञान तो बहुत देते हैं, तो ज्ञान देते हैं तो भाई शेयर भी तो कीजिए ना, कि आपको जो आपके साथ अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आप बताइए। जब शेयर करना है तब नहीं शेयर करते हैं, और जो नहीं शेयर करना है उस बारे में शेयर करते हैं। सो दिस इज माई रिक्वेस्ट टू सीनियर सिटीजन्स, आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो शेयर कीजिए। इट हैपेंड विथ माई फादर, ही वांटेड अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और वो उनके एंड्रॉइड पे अवेलेबल नहीं था। देन ही वेंट इनटू दिस रैबिट होल एंड देन उनको आई डोंट नो हाउ, बिकॉज ऑफ हिज सर्चेस, क्या उनको किसी ने ढूंढा, फोन किया, and this character was giving them Aadhaar numbers and stuff like that. Then finally I came to know, and मैंने उनको इतना डांटा, मैंने कहा यार आप रोज फोन करके मुझे ज्ञान देते हो, आप मुझे ये पता नहीं कि आपका बेटा कौन है। I had to literally reset his phone and delete everything, and so imagine this, it can come home also, it can happen to me also. So the thing is that digital arrest कोई चीज नहीं होती है। अगर कोई भी कहीं पे भी arrest word यूज कर रहा है, cut the call or tell them this word 1930. आप उनको बोलिए मैं 1930 पे चेक करता हूँ, and the fraudsters will run away, because there is no provision with a capital no, there is no provision of digital arrest. इस तरह कोई digital arrest कर ही नहीं सकता, और जो भी कर रहा है फ्रॉड है। कर रहा है तो अपने फैमिली मेंबर्स को बताइए, because they would know that digital arrest frauds are going on and they would be able to take you out of that. And इसको रोकने के लिए सबसे पहली चीज है अवेयरनेस, और ये विजिलेंटी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप सीनियर सिटीजन्स को बता रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। सो पहली चीज ये ख्याल रखनी है कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है, और लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। Mr. Brijesh, do you feel that senior citizens are more vulnerable to this kind of fraud, and if so, why? देखिए, सीनियर सिटीजन्स कम फ्रॉम a real world where things were real, where people were real, where you could talk people face Now to it's all face. real. It's all virtual now. So it's basically real people in a virtual world. And एक जमाना था जब there was a lot of trust on authority figures. And ये trust जो होता है वो कंटिन्यू होता है सीनियर सिटीजन के साथ, कि अगर कोई कह रहा है मैं गवर्नमेंट से हूँ, मैं रेलवे टीटी हूँ, मैं पुलिसमैन हूँ, मैं इनकम टैक्स से हूँ, तो वो उसको ट्रस्ट करते थे। एंड आज इसी ट्रस्ट को मिसयूज करके डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स किए जाते हैं, कि कॉल आता है कि मैं सो बोल रहा हूँ, आपका ये पेंडिंग है, और आप अगर इसको नहीं भरेंगे तो आप अरेस्ट हो जाएंगे। एंड सिंस दे आर अट्यून्ड टू दिस वर्ल्ड वेयर अथॉरिटीज approach people physically, said people things physically, they are very, very vulnerable. Mr. Dalip, आपने तो ऑफिसर्स और अथॉरिटी फिगर्स के रोल्स बहुत किए हैं, तो आपको क्या लगता है दैट दिस इनहेरेंट रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी फ्रॉडस्टर्स इस्तेमाल करते हैं सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ? Digital arrest in itself is such a fictitious and a completely sort of virtual. How can you be? I mean, I can't even understand until Brijesh explained that what is a digital arrest. But I have to say that I completely support, मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो ब्रिजेश ने कहा कि अगर आपको कोई इस किस्म की धमकी देता है कि आपको हम डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं ताकि आप वो कमरे को छोड़ भी नहीं सकते, आपको वहां बैठना पड़ेगा. Let's understand one thing, that all these people who are operating these various like digital arrest and these investment platforms, it is organized crime. These people are professional frauds. इनको मालूम है कि आपकी कमजोरी कहाँ है. ये लड़ाई नहीं है कि यहाँ से कि अरे खुद को फ्रॉड कर रहे. This is a conflict with organized crime. Very well said. इनफैक्ट जो दिलीप जी ने ऑर्गेनाइज क्राइम की बात कही है, ये बहुत रियल बात है. इस समय देयर आर साइबर क्राइम कंपाउंड्स इन म्यांमार, लाओस एंड कंबोडिया, जहां पर 20-30,000 इंडियंस हैव बीन किडनैप्ड एंड अबडक्टेड, एंड इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है. करेक्ट. हाउ टू टॉक लाइक अ पुलिसमैन, बिकॉज एक टर्मिनोलॉजी होती है, एक तरीका होता है पुलिसमैन के बात करने का या इनकम टैक्स वाले के बात करने का. तो ये वॉइस एंड एक्सेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, टर्मिनोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाती है, सेक्शंस पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद में यूनिफॉर्म्स दिए जाते हैं. तो ये पूरी एक इंडस्ट्री है. एंड दिलीप जी ने जैसा कहा कि इट्स अ ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम, और इस पर आजकल पूरी दुनिया में कोशिश हो रही है कि इसको क्रैक डाउन किया जाए. But also sometimes they are taken to these places under false claims. They did not know this was a job that they were going to get. They are actually taken for jobs. Correct. So ये IT प्रोफेशनल्स होते हैं, और इन IT प्रोफेशनल्स को जॉब के लिए ल्योर किया जाता है, और जैसे ये लेटेस्ट से सिंगापुर में उतरते हैं, इनको पासपोर्ट इनका लोग ले लेते हैं, कन्फिस्केट कर लेते हैं, और देन दे आर पुट इन बसेस and they are taken to these areas in Myanmar and Laos and in Cambodia, और यहाँ पर इनको slavery की तरफ. So it's a very dark triad of exploitation, cyber slavery, and यहाँ पर victim खुद then perpetrator बन जाता है. So it's a very dark circle, लेकिन ये चीज चल रही है इस समय. It's a major concern for the world. In fact, there are cybercrime compounds in Myanmar जिनका turnover
is in $40 billion per year. My God. And that's the tip of the iceberg. So this startup is doing well, basically. Yeah, this startup It's a is doing very good well. startup, absolutely. डिजिटल अरेस्ट वहीं से हो रहा है पूरा. Now, Mr. Dalip, film industry में सबको plot twist बहुत पसंद है. But is there some fraud twist that has happened with a colleague of yours or even with you that you would like to share? मैं बॉम्बे के बाहर था और मैं शूटिंग की तैयारी कर रहा था. तो सुबह 7:30 बजे का शिफ्ट था. मैं अपने होटल के कमरे में था. मेरा ध्यान अपने सीन पे था. अपने सीन के साथ मैं फेमिलियराइज, जो हम करते हैं शूटिंग के पहले, थोड़ा सीन पढ़ना करना ये वगैरह. 7:30 बजे सुबह उसी टाइम पे मुझे फोन कॉल आया. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, आपने अपना बिजली का बिल नहीं भरा. मैंने कहा हो ही नहीं सकता है भैया, मैं खुद, मतलब मुझे मालूम है कि मैंने सारे बिजली के बिल भरे हैं. आई मीन मैं एक्टर हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं बिजली का बिल नहीं भरता हूँ. तो उन्होंने कहा नहीं सर, आप 8 महीने पहले एक बिल आपने नहीं भरा था और उसका अभी ये प्रॉब्लम हो गया कि अगर आप आज नहीं भरेंगे तो हम आपका लाइन डिस्कनेक्ट कर देंगे. अब मैं घर पे नहीं था, मेरा ध्यान कहीं और है और मुझे मालूम है कि ये 100 फोन कॉल लेते हैं, लेकिन किसी ना किसी को ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात में, इनकी परिस्थितियां जो ऐसी होती है जो वो पकड़ जाओ. और मैं पकड़ा गया. तो उनसे बात हुई मेरी. मैंने कहा वो कैसे, ये नहीं सर, आपका 8 महीने पहले का ये, अगर आप भर दीजिए अभी तो हम नहीं करेंगे. अब मैं घर से बाहर था तो मैंने सोचा घर पे बिजली काट देंगे. तो और मुझे शूटिंग पे भी जाना था. तो मैंने कहा ठीक है. तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया जिसपे मैंने ट्रांसफर करना शुरू किया और बैंक की तरफ से मैं बच गया, क्योंकि जहां मैंने ट्रांसफर किया तो एक इंडिकेशन आया मेरे पास कि इतना पैसा ट्रांसफर हो गया, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया. लेकिन फ्रॉड कंपनी जो थी उन्होंने कहा नहीं हुआ, तो मैंने दोबारा ट्रांसफर किया. तीसरी बार जब मैंने ट्रांसफर किया तो मुझे जो बैंक से आया तो लिखा था कि अगर आपने ये ट्रांसफर नहीं किया है तो यू प्रेस द बटन. तब मुझे लगा ये तो 3 बार निकल चुका है, ये बोल रहा है कि आ नहीं रहा है. तब मुझे मालूम पड़ा फ्रॉड है. तो आई एम टेलिंग यू, ये साइकोलॉजिकल खेल है. आप कभी भी फंस सकते हैं. ये नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं तो आप नहीं फंसेंगे, या ये एनी बॉडी कैन बी कॉट. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. और इनका मतलब दे आर प्रोफेशनल्स यार. उसके बाद जब उसका नंबर मैंने ढूंढा या कुछ, एब्सोल्युटली नो ट्रेस कि हाँ साहब ये नंबर हिंदुस्तान के कहीं कोने में है या कहीं और है, ये नंबर है ही नहीं हमारे पास. सो इट्स माय होल पॉइंट कि सीनियर सिटीजन्स हैं वो थोड़े वनरेबल होते हैं क्योंकि उनके पास समय होता है, बट एनीबॉडी इज वनरेबल. एक और नया फ्रॉड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एपीके फ्रॉड. मैंने एक न्यूज पढ़ी जहां एक सीनियर सिटीजन को सिर्फ एक एपीके फाइल डाउनलोड करने को बोला गया और उनके अकाउंट से पैसा उड़ गया. तो मिस्टर ब्रिजेश, ये एपीके फ्रॉड होता क्या है एग्जैक्टली? ये देखिए, एपीके बेसिकली एक एप्लीकेशन फाइल है और एप्लीकेशन फाइल्स जो आती हैं ये सारी आपकी या तो प्ले स्टोर पर होती हैं या ऐप स्टोर पर होती हैं. और प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर एक प्रोटेक्शन होता है कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर एंड्रॉयड चाहे हो या आईफोन हो, उस पर ऐप लोड करने के पहले उसकी सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है. तो उस पर मैलिशियस ऐप नहीं डाला जा सकता है, जनरली डालना मुश्किल है. लेकिन फ्रॉडस्टर क्या करता है कि आपको वो एक एप्लीकेशन फाइल भेजता है जो एपीके होती है. ये एंड्रॉयड पर होता है, आईफोन पर आप बाहर का ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते, एंड्रॉयड पर भी इंस्टॉल नहीं कर सकते. लेकिन इंस्टॉल करने के लिए आपको फ्रॉडस्टर कहता है कि गो इनटू योर सेटिंग एंड यू एनेबल समथिंग कॉल्ड अलाउ अनट्रस्टेड सोर्सेस. नाउ अलाउ अनट्रस्टेड सोर्सेस करते ही आपका फोन वल्नरेबल हो जाता है, क्योंकि इस पर कोई भी सॉफ्टवेयर अब इंस्टॉल हो जाएगा. फिर वो आपको एक ऐसा फाइल भेजता है जो कहता है आरटीओ चालान फाइल, इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइल या इस तरह की कोई भी चीज, या वीजा एप्लीकेशन फाइल. और वो आप जैसे क्लिक करते हैं तो एक एप्लीकेशन आपके फोन पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है. और वो मैलिशियस एप्लीकेशन होता है, वो एक गलत एप्लीकेशन होता है जो बहुत सारी परमिशंस ले लेता है. वो आपके कैमरे की परमिशन लेता है, वो आपके एसएमएस की परमिशन लेता है, वो आपके फोन की परमिशन लेता है. आपने क्या किया, आपने एक ऐप इंस्टॉल करके अपनी सारी जिंदगी, अपना सारा फोन उसके हाथ में दे दिया. नाउ व्हाट दे कैन डू इज कि दे कैन इंटरसेप्ट एसएमएस. कोई भी आपका ओटीपी आता है उसको लेके अटैकर के पास भेज देता है. तो एपीके इंस्टॉल करने के बाद में जब अगर फ्रॉडस्टर को कोई फ्रॉड करना है तो उसको ओटीपी चाहिए होगा. और वो ओटीपी कहां से मिलेगा? वो एपीके फाइल जो है आपके फोन पर लोडेड, वो अटैकर को डायरेक्टली भेज देगी. तो इट इज बेसिकली गिविंग कंट्रोल ऑफ योर फोन. कई बार उसमें एक रिमोट डेस्क या एनीडेस्क तरह का रिमोट एप्लीकेशन होता है, उसमें तो आपका फोन साइड में पड़ा हो, वो रिमोटली आपके फोन पे कोई भी ऐप एक्टिवेट कर सकता है, कोई भी एक्शन कर सकता है, आपके बिहाफ पे कोई भी फोन कर सकता है. नॉट ओनली दैट,
सपोज कीजिए आपका ईमेल है, ईमेल में आपके कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप अपने आधार कार्ड की फोटो भेजते हैं, अपने पासपोर्ट की फोटो भेजते हैं, इस सब को लेकर दे कैन स्टार्ट टू क्रिएट एन आइडेंटिटी और उस पर बेसिकली अकाउंट्स खोल सकते हैं। तो फ्रॉडस्टर को अगर आपकी आइडेंटिटी मिल जाती है केवल एक फाइल इंस्टॉल करने के कारण, तो वो आपकी आइडेंटिटी चुरा के आपके नाम पे अकाउंट खोल सकता है, उससे क्राइम भी कर सकता है। सो बेसिकली अनट्रस्टेड सोर्सेज से कोई भी एपीके ना इंस्टॉल करें, और कोई भी आपको अगर फोन पर कहता है कि आप ये एपीके इंस्टॉल करें या फाइल पे क्लिक करें, तो आप उसको 1930 को इमीडिएटली रिपोर्ट करें, उसको स्क्रीनशॉट करें और cybercrime.gov.in पर इन्फॉर्म करें। प्लस प्लीज कीप योर फैमिली इन्फॉर्म्ड। So please stay away from all things malicious, people and apps. Mr. Dalip, आजकल सीनियर सिटीजन्स अकेले रहते हैं बिकॉज देयर चिल्ड्रन स्टे फार अवे, दे आर वर्किंग अब्रॉड। तो क्या आपको लगता है कि सीनियर सिटीजन्स अकेलापन महसूस करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट दे बिकम मोर वल्नरेबल एंड टारगेटेड? That is a demographic, that is a possibility कि लोग हमारे सोसाइटी में अभी भी इतना नहीं है, लेकिन बड़े शहरों में हो सकता है कि आप अलग रह रहे हैं, अपने बच्चों से अलग रह रहे हैं, लेकिन दैट इज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। इट कैन बी कि आप अकेलेपन में आप ये ज्यादा मतलब ये दिन में आपको फुर्सत है, तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको इतनी फुर्सत है तो और भी चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक दैट इज द ओनली डेमोक्रेट एंड आई डोंट थिंक दैट्स द ओनली रीजन why senior citizens are vulnerable. I think senior citizen एक ऐसा स्टेज है जहां साइकोलॉजिकली आपकी दुनिया में और आपकी जिंदगी में आपका सेल्फ वर्थ जो है, जो आप करते आए हैं अपने लाइफ में, वो कम हो जाता है। तो यू फील कि यार मुझे किसी ना किसी तरह के मेन स्ट्रीम में आना है। आजकल सब एप्स कर रहे, ये कर, एक कमाई का मौका होता है। तो yes, senior citizens are vulnerable. I don't think it's the reason is that they're staying alone. Because it is not the question of staying alone. It is in your mind. How alone you are in your mind, which is the most important thing. मिस्टर ब्रिजेश, क्या ये फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स या फेक गवर्नमेंट फ्रॉड्स स्पेशल तरीके से डिजाइन किया गया है कीपिंग सीनियर सिटीजन्स इन माइंड? साइबर क्रिमिनल्स जो है बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, and not even professional, they are very smart, they are tech savvy, they also know how to make apps. So one thing they do is they impersonate the look and feel of government apps, या जो भी आपके जैसे सपोज कीजिए कोई बैंक का ऐप होगा, इलेक्ट्रिसिटी का ऐप होगा, जैसे दिलीप जी बता रहे थे कि जिस कंपनी के बारे में बात की उसको पूरी तरह इम्पर्सनेट किया। सो उसका लोगो, उसकी कलर स्कीम, उसकी टाइपोग्राफी पूरी तरह ये लोग कॉपी करते हैं। Also look at the vulnerability wherein let's say there are certain topics which are relevant to senior citizens की 4 धाम यात्रा, right? या फिर कुछ पेंशन के बारे में कुछ होगा, या फिर पेंशन फंड के बारे में। सो ये सारे टॉपिक्स जो रेलेवेंट हैं उनको लेकर एप्स बनाए जाते हैं, वेबसाइट्स बनाए जाते हैं, जिसका लुक एंड फील बहुत ओरिजिनल जैसा होता है। इनफैक्ट आई हैड बीन हेल्पिंग सम सीनियर सिटीजन्स जहां पर दे वर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, एंड दैट साइट वाज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ बैंक, उसका एग्जैक्ट कॉपी था। बट थिंग इज कि विद कॉग्निटिव डिक्लाइन आप देख नहीं सकते कि जो उसकी लिंक है उसमें टाइपोग्राफिकल एरर है, या ओ की जगह 0 यूज किया है, राइट? या थोड़ा सा चेंजेस हैं स्पेलिंग में, 19-20 का फर्क है, तो वो आपका उतना विजिलेंस नहीं होता है। प्रोबब्ली दे नीड अ विजिलेंटी फॉर दैट। सो टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज, इसमें टाइपोग्राफिकल एरर है या ये स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, इतना अवेयरनेस शायद नहीं होता, एंड दैट मेक्स देम मोर वल्नरेबल। मिस्टर दलीप, फ्रॉड होने के बाद सीनियर सिटीजन्स चुप हो जाते हैं, वेदर इट इज शेम और गिल्ट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। क्या आप इससे सहमत हैं? जब किसी के भी, अगर आप सीनियर सिटीजन हो या जूनियर सिटीजन हो या कोई भी हो, अगर आपको कोई बेवकूफ बना के चला जाता तो आपको ये शर्म होती है कि यार मुझे चूना लगा के चले गए, मुझे उल्लू बनाया उन्होंने। There's always that guilt। अभी मैं अपने दोस्तों के पास भी जाऊं, पहले तो सोचेंगे कि यार तुम महामूर्ख हो, चाहे हालांकि they may have fallen for it themselves. So there is that danger everywhere. Nobody wants to openly admit या कि मुझे कोई fraud करके चला, because it is in a way considered as a reflection of your intelligence. जैसे ब्रिजेश ने कहा, it's very important कि आप समाज में, सोसाइटी में ये खबर फैला दें ताकि वो जो ये सब फ्रॉड जो कर रहे हैं ना उनको रोक सकते हैं। और जैसे ये साइबर सेल्स है जहां ब्रिजेश जी हैं, ये कि दे कैन एक्ट, ये नंबर्स जो दे रहे हैं आपको, दे कैन अंडरस्टैंड कि ये फ्रॉड चल रहा है।
मिस्टर ब्रिजेश, जब केसेस रिपोर्ट नहीं होते तो फ्रॉडस्टर्स को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। इनफैक्ट आपने बहुत सीरियस बात बताई। एक्चुअली बहुत सारे साइबर क्राइम के केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। जब रिपोर्ट नहीं होते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है कि देयर इज नो डेटा टू वर्क ऑन। जैसे अगर आप कोई एक नंबर रिपोर्ट करते हैं, एक गवर्नमेंट का नंबर है 1930, सो इसको मैं रिपीट करता हूँ 1930, एंड एक वेबसाइट है cybercrime.gov.in। जैसे आपके साथ कुछ होता है, भले ही आपका पैसा लूज हुआ है, नहीं हुआ है, किसी ने अटेम्प्ट किया है, आपको लग रहा है कि ये फेक है, आप इसको रिपोर्ट कर दें। रिपोर्ट करने से फायदा ये होता है कि ये नंबर जो है सस्पिशियस लिस्ट में आ जाता है। जैसे ये सस्पिशियस लिस्ट में आता है, देयर इज एन एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉल्ड I4C। I4C बहुत अच्छा बढ़िया काम कर रही है, पूरे देश में कोऑर्डिनेशन करती है। RBI से लेके, बैंक से लेके, वॉलेट से लेके, सारे जितने नए टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं आपका पैसा खर्च करने के लिए, इन सब से कोऑर्डिनेट करती है रियल टाइम में, और आपका फ्लाइट ऑफ मनी रोकते हैं। तो अगर सपोज आपका पैसा लूज हो गया तो आप 1930 पे फोन करें, वो इमीडिएटली पैसे को फ्रीज करने के लिए सब जगह फोन कर देते हैं, क्योंकि पता नहीं पैसा कहाँ गया। आजकल होता ही है कि आप जैसे 50,000 रुपये निकल गया तो वो इमीडिएटली 10 टुकड़ों में बंटता है और इट जंप्स 9-10 अकाउंट्स। सो ये रियल टाइम मनी ट्रांसफर का जमाना है, इसमें रियल टाइम एक रिस्पॉन्स की भी जरूरत पड़ती है, इसीलिए 1930 पे फोन करना जरूरी है। और जब आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आप देखिए वो आदमी कंटिन्यूसली दिन भर वही धंधा कर रहा है, वो तो बैठा है और उसके पास कोई काम नहीं, वो यही काम कर रहा है दिन भर, तो उसको रोकने के लिए आपने रिपोर्ट करना जरूरी है। इसके अलावा देखिए एक सीरियस बात मैं कहना चाहूंगा सोसाइटी के बारे में कि जिस चीज पर ध्यान नहीं जाता उस पर रिसोर्सेज नहीं आते। लॉ एनफोर्समेंट की अगर रिसोर्सेज, अगर दिख रहा है साइबर क्राइम नहीं हो रहा है तो वो बहुत बड़ा कंसर्न नहीं बनता है, लेकिन अगर साइबर क्राइम दिख रहा है, रिपोर्ट हो रहा है, रजिस्टर हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, तो उस पर कंसर्न आता है। जैसे आप देखिए कई बार कुछ केसेस होते हैं, इसके कारण विमेंस सिक्योरिटी पर एक लोगों का, एक मीडिया का और हमारा एक पूरे जनमानस का इंटरेस्ट उसमें आता है या कंसर्न आता है, लेजिट कंसर्न होता है। लेकिन जब ये चीज़ उठाई जाती है तो उसके लेकर लेजिस्लेशन बनता है, उसको लेके रिसोर्सेज दिए जाते हैं, उसको लेके स्पेशल मेजर्स किए जाते हैं। सिमिलरली साइबर क्राइम को रिपोर्ट करना इसीलिए जरूरी है कि उतने रिसोर्सेज आए, उतना तरह का रेगुलेशन बने, पॉलिसी बने। जैसे RBI ने बड़ा अच्छा काम किया है। एक अच्छी बात मैं बताना चाहूंगा कि RBI ने जो कस्टमर की लायबिलिटी है उसको लिमिट कर दिया है 25,000 पर, लेकिन उसमें एक कैवियाट है कि देयर शुड बी नो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में खुद OTP शेयर करना या APK इंस्टॉल करना आता है, लेकिन कई बार होता है कि आपकी गलती नहीं होती है, आपके बैंक अकाउंट से पैसा यूं निकल गया। सो अगर आप उसको विद इन टाइम इन्फॉर्म कर रहे हैं, आप उसको 24 घंटे में इन्फॉर्म कर रहे हैं, विद इन पर्टिकुलर टाइम इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो आपका पैसा बचने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि RBI ने बैंक को कह दिया है जहां कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नहीं है वहां 25,000 रुपए के ऊपर आप एक पैसा आप चार्ज नहीं कर सकते, आपको वापस करना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि अपार्ट फ्रॉम 1930 एक इंस्टीट्यूशन होता है, हर एक बैंक की भी अपनी एक नंबर होता है, हेल्पलाइन होती है। इसके अलावा आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को रिपोर्ट जरूर करें, बिकॉज दे हैव अ ह्यूज चांस टू गेट योर मनी रिकवर्ड, एंड दैट इज व्हाई इट इज एसेंशियल टू रिपोर्ट। देखिए कोविड में जिस तरह होता था कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती थी, पता लगता था कहाँ कहाँ पर ये फैल रहा है, उसको लेकर एक रिस्पांस तैयार किया जाता था। जब पता ही नहीं लगेगा बीमारी कहाँ है तो उसका रिस्पांस कैसे होगा? Are you saying that they will continue to use the same number to call you until someone complains about the call from Yeah, that because number? it should be known. Once it is flagged, then in fact you'll be happy to know that RBI ने एक नया सर्कुलर अभी जारी किया है जून में, जहां पर उन्होंने देखिए 2 अलग-अलग सिस्टम्स हैं। टेलीकॉम एक अलग सिस्टम है, व्हाट्सएप एक अलग सिस्टम है, ये सारी अलग अलग कंपनियां हैं, इनके पास में डेटा है, तो एक बड़ा फ्रेगमेंटेशन है रिस्पॉन्स में। पुलिस में भी देखिए ज्यूरिसडिक्शन, कोई पुलिस स्टेशन कहाँ पर है, फ्रॉड कहाँ हो रहा है, बैंक कहाँ पर है, सर्वर कहाँ स्कैंडिनेविया में है, फेसबुक कहाँ पर है। सो ये बहुत अलग अलग सिस्टम्स हैं, इनका रियल टाइम में कोऑर्डिनेशन मुश्किल होता है। लेकिन RBI ने अभी क्या किया है कि एक फ्रॉड रिस्क रजिस्ट्री है जो टेलीकॉम की, उसको बैंकों के साथ जोड़ दिया है। तो जैसे कोई नंबर फ्लैग होता है, वो नंबर फ्लैग होते ही सारे बैंकों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि देखिए ये एक फ्रॉड नंबर है, एंड दैट इज व्हाई रिपोर्टिंग इज एसेंशियल। एक ऐप में लेकिन मैं कहूंगा इंस्टॉल करने के लिए सबको, इसके बारे में आप पहले स्टडी कर लें, लेकिन स्टडी करके इंस्टॉल करें। उसका नाम है संचार साथी। ये गवर्नमेंट का ऐप है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का ऐप है, और ये यही करता है कि कोई भी SMS को, कोई भी फेक कॉल को रिपोर्ट करना आसान बनाता है। इसको जब आप रिपोर्ट करते हैं तो पीछे एक डैशबोर्ड बनता है, एक इंफॉर्मेशन बनता है, नेटवर्क बनता है जो रियल टाइम इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है। इसको इंस्टॉल कीजिए। दिस इज योर ग्रेटेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर फ्रॉड्स। Now, मिस्टर दलिप, फैमिली का रोल होता है सीनियर सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना, बट इसके अलावा उनको एम्पावर भी करना चाहिए। और आपकी क्या राय है? हाउ डू वी एम्पावर द सीनियर सिटीजन्स?
this word empower is like, I just find it so abstract in this day and age. Empowering is what? Empowering is उनके पास गैजेट है, मोबाइल फोन है सीनियर सिटीजन के पास. अब भी बात हो रही थी, सारा कुछ तो है उसके पास, सीनियर सिटीजन के पास. आप क्या एम्पावर करेंगे? He has to, senior citizens have a responsibility to empower yourself. जैसे अभी डिस्कस किया है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, you have to be able to communicate. तो ये नहीं कि आप फैमिली पे डिपेंड कर रहे हैं कि आप हमारी जहां सीनियर सिटीजन का रेफरेंस होता है तो ऑटोमेटिकली ये इमेज, ये तस्वीर आती है सामने कि कोई बूढ़ा है, समझ में नहीं आ रहा है. अगर इतना बूढ़ा बेचारा हो तो यू कांट कम ऑन टू एन एक्ट, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा. तो आई मीन यू हैव टू एम्पावर योरसेल्फ. ये डिपेंडेंसी जो लोग कहते हैं सीनियर सिटीजन को, यार तुम उसको एम्पावर करोगे, बच्चे उसे बताएंगे, कोई जरूरत नहीं है. आज की तारीख में इट्स अ साइबर वॉर. अगर ये फ्रॉड होता है, यू हैव टू टैकल इट immediately with the same kind of technology. In fact, there are phone numbers given, but the technology you have to handle it on your own. So I believe that senior citizens are empowered with the technology at their fingertips. So they should know how to use it. देखिए, गार्जियनशिप की जरूरत है. जिन लोगों ने आपको जिंदगी भर बड़ा किया, जिन लोगों ने आपको अच्छी लाइफ दी, एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके प्रति भी. तो हम बच्चों को सिखाते हैं गुड टच बैड टच. इस तरह हमने सीनियर सिटीजन्स को सिखाना चाहिए गुड मैसेज बैड मैसेज में क्या फर्क होता है. और ये बहुत जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज बहुत कुछ जाएगा. उनका नाम, इज्जत, चैन, आपकी रिलेशनशिप्स, ये सारी चीजें खतरे में हैं. उनकी सिक्योरिटी, जिंदगी की सिक्योरिटी खतरे में है. और ऐसे समय में जब वो पैसा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यंग आदमी का पैसा गया तो शायद वो कमा लेगा, लेकिन एक अगर ओल्ड आदमी है, उसका पैसा जाए तो वो नहीं कमा पाएगा. मिस्टर ब्रिजेश, क्या आपके पास कुछ सिंपल टूल्स या टिप्स है जिससे सीनियर सिटीजन्स कैन रिमेन विजिलेंट एंड केयरफुल? सबसे पहली बात तो हमारा शो देखिए और अवेयर हो जाइए. लेकिन अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है एंड यू गेट द अवेयरनेस की कुछ गड़बड़ लग रहा है, सो मैंने जैसे पहले कहा कि स्टॉप स्क्रीनशॉट शेयर, कि आप पहले उस चीज को स्टॉप कर दें, रोक दीजिए. हो सकता है आपका कनेक्शन टूट गया, डिजिटल अरेस्ट में हो सकता है आपकी लाइट चली गई, कोई निकल के वो अरेस्ट नहीं कर लेगा मोबाइल में से आपको. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व द एविडेंस. तो उसको स्क्रीनशॉट करें और उसको आप शेयर करें फैमिली में, एंड देन लेटर ऑन यू शुड टेल दिस ऑल्सो टू अदर्स. देन 1930 को कॉल करें एंड cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें. आप जब उस पर रिपोर्ट करेंगे सो इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा. दूसरी बात, cybercrime.gov.in की एक खास बात है कि उस पर आप एनोनिमसली भी रिपोर्ट कर सकते हैं. दैट आपको कई बार हो सकता है शर्म आ रही हो, या कई बार इस तरह के आपको फ्रॉड्स में इन्वॉल्व करते हैं. वो कहते हैं कि यू वेर वॉचिंग पॉर्न एंड हमारे पास में आपके सारे पॉर्न साइट की लिस्ट है. तो आपको अगर कई बार शर्म लगती है रिपोर्ट करने में, तो आप अनोनिमसली रिपोर्ट कर सकते हैं cybercrime.gov.in पर. उस पर आप स्क्रीनशॉट डाल दीजिए और उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा. लेकिन सबसे पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कोई भी चीज़ अननेसेसरी डाउनलोड ना करें. डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती. और कोई भी लिंक क्लिक करने से पहले सोचें कि विजिलेंटी अप्रूव करेगी कि नहीं करेगी. Thank you, Mr. Brijesh, and thank you, Mr. Dalip. Remember these useful tips.
तो सीनियर्स याद रखिए, स्मार्ट बनो, स्कैर्ड नहीं। वेरीफाई करो, रिपोर्ट करो और विजिल आर्मी के साथ बने रहो। Check out other episodes of Conversation with Vigilante podcast to stay up to date and vigilant about other frauds happening in our country. Until next time, stay safe, stay vigil. This is Vigilante signing off. Don't be sad because this is not the end. Should I say to be continued? Send one hi on 7290030000 to join the Vigil Army and keep everyone safe from the latest financial fraud. And remember, never share your OTP and banking details with anyone.